Hello students, good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College, Pilibhit. I welcome you in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the marketing environment. That is the part of second unit of your marketing syllabus for class 11th. Subject code is 812-812. Let us start the introduction of marketing environment. First, we are going to discuss that what is the roadmap for this PPT that we are going to cover in this session. Describe the environmental forces that affect the company's ability to serve its customers. वो कौन कौन से environmental factor हैं जो कंपनी की ability को इफेक्ट करते हैं कस्टमर को सर्व करने में. Secondly, explain how changes in the demographic and economic environments affect marketing decisions. Next point, identify the major trend in the firm's natural and technological environment. Next, explain the key changes in the political and cultural environment. And the last one is discuss how companies can react to the marketing environment. Okay, how they seek the factors existing in marketing environment. Now coming to next slide, marketing environment. Here is the definition of marketing environment. Marketing environment consists of the actors and forces outside marketing that affect marketing management ability to develop and maintain successful relationship with its टारगेट कस्टमर्स. मार्केट एनवायरनमेंट उन सभी फैक्टर्स और फोर्सेस का सेट है जो कंपनीज की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं कस्टमर्स को सर्व करते टाइम. ओके, कस्टमर और कंपनीज की रिलेशंस को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं दोज आर अ सेट ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ओके, इट इंक्लूड्स माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज macro environment. Micro environment are the forces close to the company that affect its ability to serve its customers. जो भी फैक्टर्स कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं दोज आर अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, वेयर एज द मैक्रो एनवायरनमेंट लार्जली सोसाइटियल फोर्सेस दैट अफेक्ट द माइक्रो एनवायरनमेंट. ओके, माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब इंटरनल फैक्टर्स को जो बाहरी फैक्टर्स या सोसाइटियल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं दोज आर अ पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, company's internal environment. There is a figure on your screen. You can find out that what are the internal factors that have an impact on the ability of firm. ओके, फर्स्ट फैक्टर इज टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन, टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग स्किल्स और जो भी उनके पर्सनल ट्रेट्स हैं दोज आर अल्टीमेटली अफेक्टिंग द कंपनीज एबिलिटी टू सर्व द कस्टमर. सेकेंड इज फाइनेंस. फाइनेंस इंक्लूड्स द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द कंपनी. थर्ड इज R&D, दैट स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम. हाउ एडेप्टेबल यू आर टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट. आप अपने आप में कितना चेंज करते हैं एनवायरनमेंट में चेंज के साथ में. ओके, नेक्स्ट इज परचेजिंग. योर सप्लायर are also a part of your purchasing team and the factors affecting your purchasing ability come under this category. Next is manufacturing. Manufacturing process, manufacturing team, people working with your team, these are the part of manufacturing. Now last is accounting. Accounting is also a factor of internal environment which is manipulated with the ability of firm. The company's micro environment, we will discuss it in detail. Company's internal environment is called micro environment. These are the areas inside a company and the top management. It affects the marketing department's plan because in every company the top decisions are taken by the management of company, so ultimately it affects the marketing department's plans also.
Second factor of the microenvironment is supplier. Suppliers provide resources needed to produce the goods and services. कंपनी जिन भी ऑपरेशंस में डील करती है उन्हें वो रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स जो इंटरमीडियरीज अवेलेबल कराती हैं, दोज आर कॉल्ड सप्लायर्स. सप्लायर्स आर इंपॉर्टेंट लिंक इन द वैल्यू डिलीवरी सिस्टम. अगर आपको पीछे से मटेरियल गुड क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, देन हाउ यू आर सपोज्ड टू कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल इन अ good product. Okay, so it is very important factor of microenvironment that how suppliers play the role in your production process. Next factor is marketing intermediaries. आपके मार्केटिंग प्रोसेस में आपके अल्टीमेट कस्टमर तक जब तक प्रोडक्ट पहुंचता है, उस प्रोसेस में जो भी चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, दोज आर कॉल्ड इंटरमीडियरीज. हेल्प्स द कंपनी, इंटरमीडियरीज हेल्प्स द कंपनी टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड्स टू फाइनल बायर्स. There can be different type of intermediaries in marketing channel. That can be retailer, that can be supplier, that can be wholesaler or reseller. All these are the component of marketing intermediaries. Companies microenvironment include the next factor, which is customer. 5 types of markets that purchase a company's goods and services. Next is competitors. Competitors are those who serve a target market with similar products and services. जिस प्रोडक्ट में या जिस सर्विस में आपकी कंपनी डील कर रही है, अगर उस सर्विस या प्रोडक्ट के अदर प्लेयर्स भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, देन डेफिनेटली दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ कॉम्पिटिटर इन द मार्केट फॉर योर कंपनी. कॉम्पिटिटर्स कंपनी मस्ट गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशंस. आपकी कंपनी को एज अ प्रॉफिट जनरेटर कंपनी क्या करना चाहिए? आपके पास कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होना चाहिए, वेदर इन द प्रोसेस और इन द रिसोर्सेज. चाहे वो रिसोर्सेज में हो या फिर प्रोसेस में हो या फिर ह्यूमन स्किल्स में हो, आपके पास अगर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, देन you can compete with your competitors. Next factor of the microenvironment is public. Public is a group that has an interest in or impact on organization's ability to achieve its objective. Public में वो सारे लोग आते हैं जो आपके कस्टमर हैं या फिर आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स हैं, ओके, जिनका कॉमन इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में और आपके प्रोडक्ट्स में. Those group of people are called public. All right, so these are the different types of internal factors which have an impact directly or indirectly on the performance of a company. Now coming to next type of next slide is types of customer markets. Types of customer markets are divided into five parts: consumer markets, business markets, reseller markets, गवर्नमेंट मार्केट्स एंड इंटरनेशनल मार्केट. एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन सभी को डिटेल में. सबसे पहला आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंज्यूमर मार्केट. कंज्यूमर मार्केट उन सारे कंज्यूमर्स के ग्रुप से बनता है जो हमारे प्रोडक्ट को अल्टीमेटली यूज करते हैं, ओके, जो फाइनल टारगेट कस्टमर्स हैं हमारे, उनके सेट को हम लोग, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर मार्केट. बिजनेस मार्केट जो आपके प्रोडक्ट का यूज करके कुछ आपके प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके, सो दीज आर योर बिजनेस मार्केट. थर्ड इज रीसेलर मार्केट. ऐसी कंपनीज जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करती हैं और मार्केट में उसे रीसेल करती हैं एट अ गुड प्रॉफिट, तो उन्हें कहते हैं रीसेल मार्केट. फोर्थ इज गवर्नमेंट मार्केट. जब किसी कंपनी को किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, देन इट कंप्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट मार्केट. लास्ट इज इंटरनेशनल मार्केट. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जब
कंट्री की बाउंड्री के बियॉन्ड आपके बिजनेस ऑपरेशंस लीड करते हैं, देन दिस ग्लोबल मार्केट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट. In next figure 4.3 you can see types of public. What are the types of people with whom the company deal with? कौन से किस किस टाइप के लोगों के साथ में कंपनी डील करती है? फाइनेंशियल पब्लिक, मीडिया पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक, सिटीजन एक्शन पब्लिक, लोकल पब्लिक्स, जनरल पब्लिक एंड इंटरनल पब्लिक. जिसमें इंटरनल पब्लिक वो सारे लोग हैं जो आपके कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और जो आपकी कंपनी के पार्टिसिपेंट्स हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज द कंपनीज मैक्रो एनवायरनमेंट. इससे पहले हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है दैट वाज अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इंटरनल फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी विच अफेक्ट द एबिलिटी टू वर्क इन अ एनवायरनमेंट. नाउ कमिंग टू मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पे. डेमोग्राफिक फोर्सेज आर देयर, इकोनॉमिक फोर्सेज आर देयर, नेचुरल फोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज, पॉलिटिकल फोर्सेज एंड cultural forces. In upcoming slides we will discuss these factors in detail. The company's macro environment consists of first factor is demographic. Demographic factor studies the population in terms of size, density, location, age, gender, race, occupation एंड अदर स्टैटिस्टिक्स. पॉपुलेशन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी टारगेट मार्केट है उसमें लोगों की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं. ओके, और लोगों की एज, लोगों का जेंडर, लोगों की लोकेशन या फिर लोगों की कास्ट, ये आपको किस तरह से इफेक्ट करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स में. ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक फैक्टर. Economic factors that affect consumer purchasing power and spending pattern. वो सारे फैक्टर्स जो कस्टमर की परचेजिंग पावर पे इफेक्ट डालते हैं या फिर उसके कंजम्पशन पैटर्न पे इफेक्ट डालते हैं, वो सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आते हैं. ओके, रिमेंबर गाइस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट. इसमें ये सारे एनवायरनमेंट कवर होंगे जो आपके कंपनी के इंटरनल या आपके कंट्रोल में नहीं है. ओके, जो माइक्रो था वो तो आपके कंट्रोल में था बिकॉज दोज वर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ योर कंपनी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट एंड दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ कंपनी एंड दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंपनी. ओके, थर्ड इज नेचुरल फोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड एज इनपुट बाय मार्केटर्स और दैट आर अफेक्टेड बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज. ओके, की डेमोग्राफिक चेंज. अगर हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करें तो उसमें हम लोग देखते हैं चेंजिंग एज स्ट्रक्चर. पॉपुलेशन कंटेन्स 7 जनरेशनल ग्रुप्स. पॉपुलेशन में जो हम लोगों की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसमें टोटल 7 जनरेशन्स हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन फैमिलीज और इंडियन फैमिलीज ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट लेटर और नो मैरिज, फ्यूअर चिल्ड्रन, वर्किंग वीमेन एंड नॉन ट्रेडिशनल हाउस होल्ड. आप लोग बात करें इंडियन कल्चर में भी इस तरह का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. लेटर मैरिजेस का मतलब ये है कि लोगों की शादियों में जो आप देखते होंगे पहले शादियां 21 साल में या 20 साल में हो जाया करती थी, वो अब लोग 25 ईयर्स 30 ईयर्स की एज में मैरिज करते हैं. फ्यूअर चिल्ड्रंस, आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, इस टाइप की स्कीम, जो इस टाइप का कुछ स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का स्लोगन दिया गया है ना. तो क्या हुआ, फैमिली का साइज भी धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है. वर्किंग वीमेंस धीरे धीरे, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है उसी की वजह सॉरी गाइस, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फैमिली की नीड्स बढ़ती जा रही हैं और वर्किंग वीमेंस की संख्या भी बढ़ती जा रही है. सो दीज आर द चेंजेस which we can observe in our society. Geographic shifted to the subbelt, suburbs, micropolitan areas.
आप लोग देखेंगे जो रूरल एरियाज में पहले फार्मर्स थे या फिर वर्किंग पीपल थे, वो लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं किस तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ डेमोग्राफिक चेंज इन अवर इंडियन पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज बेटर एजुकेशन एंड मोर वाइट कॉलर, increased college attendance एंड वाइट कॉलर वर्कर्स. धीरे धीरे आप लोग देखते हैं कि जैसे जैसे क्वालिफिकेशन या एजुकेशन लोगों की इंक्रीज होती है, एनहांस होती है, वैसे वैसे उनकी जॉब का पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है. ओके, लोग वाइट कॉलर्स जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू ब्लू कॉलर जॉब. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी. धीरे धीरे हम लोगों की पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. एथनिक हेरिटेज, गेज, लेस्बियंस, डिसेबल्ड पीपल, these are also included in the mainstream of the society. Third gender, you can see in many of the government opportunities there will be a column of gender for third gender. Okay, so these are the demographic change in our society. चेंजिंग एज स्ट्रक्चर, तो आप लोग देख सकते हैं चेंजिंग एज स्ट्रक्चर में बेबी बूमर्स जनरेशन, about 28% of population is comprising of baby boomers. Next is a generation X and generation Y. These are two types of generation existing in our society. In some upcoming session we will discuss this generation X and generation Y in detail. Okay, changing family. 58% of all women 16 and older are working or looking for a job. आप लोग देख रहे होंगे कि फैमिली का पैटर्न भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है. फैमिली में वर्किंग वुमेन एंड वर्किंग मैन बोथ आर वर्किंग टू कंट्रीब्यूट इन द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली. दोनों लोग जो मैरिड कपल हैं उनमें दोनों लोग धीरे धीरे जॉब की ओर बढ़ रहे हैं और वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी फैमिली के एक्सपेंडिचर्स की तरफ. मैनी मार्केटर्स ऑफ टायर्स, कार्स, इंश्योरेंस, ट्रेवल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टारगेट दीज वीमेंस. ओके, क्योंकि फैमिली में जब फादर एंड मदर दोनों वर्किंग होते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड that there arise a need of safety. Okay, so insurance company is also targeting this type of families and women. Economic environment. Economic factors are also a part of macro environment. Changing in income, जैसे कि आप देख सकते हैं 1980s में इनकम पैटर्न कुछ और था, 1990s में चेंज हुआ. नाउ वी आर लिविंग इन 21st century, so the income pattern has been completely changed among the people. Changing consumer spending pattern, लोगों के खर्च करने का पैटर्न भी बदल गया. ओके, income distribution. On the basis of income distribution there are 4 categories of different type of people existing in the society: upper class, middle class, working class and under class. Okay, so now natural environment. फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचर से रिलेटेड चीज़ों को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. नेचर की वजह से हम लोगों की कंपनीज़ को किस तरह से इफेक्ट किया जा सकता है? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. मान लीजिए किसी टाइम ग्रेन की उपज कम हुई है या जो वीट है वो कॉस्टली है, सप्लायर्स किसी बिस्किट कंपनी को वीट फ्लोर जो है वो हाई रेट पे दे रहे हैं, तो उसकी जो प्राइस है वो हाई होना पॉसिबल है. ओके, इंक्रीज पॉपुलेशन के इंक्रीज की वजह से भी धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ गया है. एनवायरमेंटली सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज, इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशंस. आप लोग देखते होंगे नेचुरल जो कंपनीज थी पहले नेचर को बहुत ही वाइड रेंज में एक्सप्लॉइट करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं और जब भी आप किसी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हो देन देयर शुड बी अ कंफर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. ओके, द कंपनीज मैक्रो एनवायरनमेंट
including technological, political, cultural factors are there. Technological environment, you can see on the slide, changes, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस रैपिडली. देखते होंगे कि पीछे काफ़ी पहले के टाइम में मॉनिटर्स जो यूज़ होते थे, सीआरटी टाइप की बड़ी सी स्क्रीन होती थी और उसके साथ में एक बड़ा सा कीबोर्ड होता था और माउस भी अलग होता था. ठीक है, तो धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो अब एलसीडी स्क्रीन पे आप कंप्यूटर को देख सकते हैं. अब आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में और चेंज हुआ और सीपीयू आपका स्क्रीन के अंदर इनबिल्ट आने लगा है, उसमें अलग से सीपीयू इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. सो दीज ऑल आर इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, क्रिएट न्यू मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज़. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज होता है वैसे वैसे मार्केटिंग कंपनीज के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी अराइज होती हैं. ओके, सेफ्टी रेगुलेशंस results in higher research cost. Now at the last of this session we are going to wind up these slides. Before that you have to discuss these two questions in the comment box and you have feasible answer with you, then you can put it in comment box. First question is, which technological force will impact marketing the most in the near future? कौन सा टेक्नोलॉजिकल चेंज ऐसा है जो आने वाले टाइम में मार्केटिंग ऑपरेशंस को इफेक्ट करेगा? ओके, सेकेंड इज, व्हाट टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैव इम्पैक्टेड यू द मोस्ट? कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आया है? These two questions you can answer according to your thinking and perception in the comment box. Okay, now next factor is political environment. Political environment में क्या होता है? Increasing legislation, धीरे धीरे गवर्नमेंट के लॉज में, गवर्नमेंट एजेंसीज में चेंजेस होते जा रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेस ऑपरेशंस में भी चेंजेस आ रहे हैं. चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, एनफोर्समेंट, इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. धीरे धीरे कंपनीज इस बात के लिए भी बाउंड हैं कि वो अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली फॉलो करें और नेचुरल रिसोर्सेज के डैमेज को प्रिवेंट करें. ओके, कल्चरल एनवायरनमेंट, here are identified 8 major consumer themes, consumer value themes. There are 8 type of consumers we have which are categorized according to many of marketers. First is paradox, second trust not, third go it alone, fourth smart really count, fifth no sacrifice, seventh sixth is stress hard to beat, seventh is reciprocity is the way to go, and eighth is me too. Okay, so in the last slide of this PPT is cultural environment. You can see here is mentioned society's major cultural views are expressed in people's view of. लोग अपने आप को किस तरह से डिफाइन करते हैं? सोसाइटीज मेजर कल्चरल व्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन द पीपल्स व्यू. उनके कल्चर का जो उनकी सोसाइटी का जो व्यू है उनके कल्चर को लेके वो क्या है? ओके, एक्सप्रेस्ड इन द पीपल्स व्यू ऑफ देमसेल्फ. लोगों का उनके खुद के बारे में क्या ख्याल है? अबाउट द अदर्स, वो दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं? अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, जिन ऑर्गेनाइजेशंस से वो डील करते हैं उनके बारे में वो क्या सोचते हैं? अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द नेचर एंड अबाउट द यूनिवर्स. इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों की जो ओपिनियन है, जो एक्सप्रेशन है और जो परसेप्शन है, उससे मिलके हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट प्रिपेयर होता है. Okay, so these are the major point which makes the cultural thinking of people. Okay, responding to marketing environment, you can go through it. Okay, now after going through this slide and this conversation, you should be able to answer these questions
which are mentioned on your screens. Describe the environmental forces that affect the company's ability to serve its customer. ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम्स में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर. Second is explain how changes in the demographic and economic environments affect marketing decision. Demographic changes और economic environment में changes की वजह से marketing decision पे क्या effect पड़ता है. Third is identify the major trend in the firm's natural and technological environment. आज की कंपनीज में क्या क्या नेचुरल चेंजेस हुए हैं और क्या क्या टेक्निकल चेंजेस हुए हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है. एक्सप्लेन द की चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. प्रेजेंट सिचुएशन में पॉलिटिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं. लास्ट इज डिस्कस हाउ कंपनीज कैन रिएक्ट टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट. हाउ कंपनीज कैन कोप अप विद दीज चेंजेस बीइंग अकरिंग इन देयर सराउंडिंग्स. तो कंपनी किस तरह से इन एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकती है. सो दीज आर द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस पीपीटी. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ marketing environment. Till then, take care. Thank you.